So let's discuss what physics is. ठीक है? Physics is defined as a branch of science that deals with matter, energy, and their relationship. So let's discuss what matter is, what energy is, और उनका relationship क्या होता है. Sciences तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है. You have the basic knowledge of science. You have studied chemistry, biology, and physics all together in your last grade. But here we'll study physics as an individual subject in which the very basics will be studied in the chapter number 1. So matter is defined as, what do you know about matter? Science में क्या पढ़ा हुआ है matters के बारे में? Sir, anything that occupies space. Yes. Anything that occupy space. And energy is that gives you the ability to do work. So basically हम लोग matter, energy and उनके relationships हैं physics के अंदर पढ़ेंगे. So the very first chapter that of physics is measurements. In order to understand what measurements are, first we need to discuss what physical quantity is. Physical quantity is defined as anything that could be measured. If you can measure anything in physics, that will consider as a physical quantity. There is another thing that we can term as physical quantity as well, and that is a physical quantity is also defined as anything, sorry, not anything, a quantity that has quantity having magnitude and unit. जैसे you might have studied forces पढ़े होंगे आपने साइंसेस के अंदर. फोर्सेस पढ़े हुए होंगे आपने, डेंसिटी को मे भी पढ़ा हुआ होगा आपने, एंड you might have studied speed as well or weight. Do you recall any of this and any of the quantity that I've just named? जी सर. फोर्स अब हम कहते हैं 10 न्यूटन. ठीक है. So 10 is the magnitude and n is the unit, Newton. ठीक है. So any quantity that has magnitude and unit is defined as a physical quantity. Physical quantity is further divided into two types, that is known as base quantity and derived. Base quantity is defined as that could be measured directly, and quantities that depends on other quantities are known as derived quantity. For example, मास को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, टाइम को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेंथ को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. सो ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कुड बी मेजर्ड डायरेक्टली आर नोन एज
बेस क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल आपने वॉल्यूम को डील किया होगा इन योर साइंसेस, आपने एरियाज मेजर किए होंगे. इन ऑर्डर टू मेजर द वॉल्यूम, व्हाट क्वांटिटीज डू वी नीड? वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमें कौन कौन सी क्वांटिटी चाहिए होती है, फातिमा? फातिमा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? Sir, mass multiplied by density. ओके, देयर इज अनदर देयर इज अनदर फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, भी आपने पढ़ा होगा, जो मैथ्स का होता है बेसिक फॉर्मूला. फातिमा, Sir, सॉरी, math में यही पढ़ा है. मैथ्स में तो आपने वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट नहीं पढ़ा हुआ? वो भी पढ़ा है सर. हाँ ठीक है. अब in order to get the volume, we need mass and density or length or breadth or height. We cannot measure them directly. ठीक है. All those quantities which depends on other quantities for their measurement are known as derived quantities, and all quantities which could be measured directly, like I have named a few. There are total 7 quantities in general जो के base quantities होती हैं, and those are mass, time, length, electric current, amount of substance, temperature and light intensity. अच्छा, आप ये आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. Everything that we have studied so far, na, that is just for your general concept के what these things are actually. With the things where you need to memorize anything, I'll point that out for you. For now, you only need to understand what these things are. Am I clear up till now? Do you have any questions? Do you want me to repeat any point? नो सर. Clear है यहाँ तक के सारे points? जी. ओके. मास का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम. टाइम का सेकंड्स, लेंथ का मीटर्स, करंट इज मेजर्ड इनटू एम्पेयर्स, आपने साइंसेस में पढ़ा हुआ है. सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स पढ़े हुए हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यू यूज मोल, टेम्परेचर के लिए आप लोग केल्विन यूज करोगे, एंड लाइट के लिए आप लोग कैंडेला, व्हिच इज सीडी. These are the units that we normally would consider when we are doing or making any calculations. And if some other unit is used instead of these units, we'll convert them until unless if all the quantities have a different unit other than base units. ठीक है. For example, अगर हम density की बात करें, तो mass and volume divided by volume is density. If mass is given in kilograms and volume is given in meter cubes, we'll directly measure it. Otherwise, we will convert it. Or if some other units are given of volume, for example grams per centimeter cube, तब भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी कैलकुलेशन के अंदर अगर एक भी बेस यूनिट प्रेजेंट है, यानी मास उसने ग्राम्स में दिया हुआ है बट वॉल्यूम उसने सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे. इधर इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, और किलोग्राम्स को ग्राम्स में करेंगे. अगर एक भी बेस यूनिट गिवन है, वी हैव टू कन्वर्ट और यूज ऑल द क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट्स. ठीक है. जी सर. Up, the next thing is we discuss is after physical quantities, we discuss 3 important things that we need to understand. That is important for all kinds of calculation is prefix, scientific notation, and significant figure. अब हम इसको individually discuss करेंगे. That would be the end of today's lecture. From tomorrow we'll discuss what is given in the chapter. ठीक है. Prefix is basically a quantity
or which is placed, quantity तो नहीं को बोलेंगे, which is placed before a unit, a number or parameter which we place before a unit, which explain its magnitude. Scientific notation is defined as a number written in the power of tens. अगर किसी भी नंबर को हम पावर ऑफ टेंस की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन. एंड सिग्निफिकेंट फिगर इज को हम अगर हम बेसिक टर्म्स में बात करें, हाउ मेनी digits answer must be noted. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कैलकुलेशंस आती हैं, उसमें आंसर आता है 13125.675. ठीक है, हाउ मेनी डिजिट्स टू हाउ मेनी डिजिट्स आई राइट माई फाइनल आंसर, दैट वुड डिस्कस इन सिग्निफिकेंट फिगर. पावर ऑफ 10 का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ नंबर विच इज like this, ठीक है, and I write it like 2 into 10 raised to power 1, 2, 3, 4, 5. So when I convert the number, long number into power of 10, that is known as scientific notation. And prefix is defined as the unit which is before, placed before a unit. For example, centimeter, millimeter, nanosecond. ठीक है, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, साइंसेस में भी पढ़ा होगा. तो हेयर सेंटी, मिली एंड नैनो इज द प्रीफिक्स. ये बताते हैं कि यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज कि हाउ बिग और स्मॉल अ यूनिट इज. सो एनीथिंग दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ यूनिट इज नोन एज प्रीफिक्स. आर वी क्लियर अबाउट दीस टर्म, प्रीफिक्स, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर? फिर मैं आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करता हूँ इसको कैसे हम लोगों ने याद किया. सर सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा बता दें फिर से. सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली ये होता है कि आपने अपने फाइनल आंसर, फॉर एग्जांपल आपने कुछ मल्टीप्लिकेशन किया है, डिवीजन किया है, एनीथिंग यू हैव डन अ पर्टिकुलर कैलकुलेशन, उसका आपके पास एक आंसर आया है, आपने उस फाइनल आंसर को कितने डिजिट्स तक नोट करना है. जैसे राउंडिंग ऑफ नहीं करते थे आप लोग मैथ्स के अंदर, राउंडिंग ऑफ अ नंबर, राउंडिंग ऑफ अ नंबर, आप एक बड़े नंबर को एक राउंड ऑफ करके लिखते हो, उस तरह ही एक सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है हमारे पास कि आपने अपने फाइनल आंसर कितने डिजिट्स तक नोट करना है. जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ा नंबर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, उसको हमने कितने डिजिट्स तक अपने फाइनल आंसर को नोट करना, दैट इज नोन एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. आगे जाके हम उसको फर्दर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे. आप बस उसको अपने माइंड में ऐसे बिठा लो कि आपने कितने डिजिट्स तक अपना आंसर लिखना है, फाइनल आंसर कितने डिजिट्स तक नोट करना है, उसको हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बड़ा सा आंसर आ रहा है, आपने उसको कहाँ तक नोट करना है, दैट इज नोन एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. प्रीफिक्स तो वो होता है कि जो हम यूनिट से पहले लिखते हैं, प्रीफिक्सेस को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती हैं वो आप मतलब आप उनको इनकॉर्पोरेट करोगे उसके. ठीक है, ओके सर. फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीफिक्स से शुरू करते हैं, there is a table of prefix that we need to keep in our mind, because again इस तरह के questions directly नहीं आते in our exams, we just need to use them whenever we are doing the calculations. तो calculations throughout हमारे फिजिक्स में चलती रहनी है, तो हमें इन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होगा. हमारी बुक में एज इट इज दीज पॉइंट्स आर नॉट गिवन, इसमें से अभी तक का कोई पॉइंट हमारी बुक में एज इट इज गिवन नहीं है, बट वी नीड टू यूज देम whenever we are going to do any calculations. ठीक है, this is something that you need to keep the concept of. अब prefix में जाते हैं, तो prefix में हमारे पास there are number of prefixes जो हमने याद रखना है, जिसको हमने स्टार्ट तो कर दिया था, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो एंड पीको. ठीक है, पीको को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, नैनो को स्मॉल एन से, माइक्रो को ऐसे यू, एम को स्मॉल एम, मिली को स्मॉल एम से, सेंटी को they have the powers as 10 to the power of -12, 10 to the power of -9,
10 to the power of -6, 10 to the power of -3 and 10 to the power of -2. I hope you know कि 10 to the power of -2 का मीनिंग क्या होता है, 1/100. 10 to the power of 3 का मतलब क्या होता है, 1000 and so on. ठीक है। पॉजिटिव के अंदर जो हमारे पास पावर्स होती हैं जो हम नॉर्मली यूज करेंगे वो होगा किलो, मेगा एंड समटाइम्स गीगा. किलो रिप्रेजेंट एज के, इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 3. मेगा को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं एंड इट्स इक्वल टू द पावर ऑफ 6. गीगा को 10 टू द पावर ऑफ 9. अब अगेन इफ समथिंग इज रिटन लाइक दिस, अब इसमें यूनिट कौन सा है एंड प्रीफिक्स कौन सा है? I'll start with Fatma. Fatma, which one is a prefix and which one is a unit? सर ये सेंटीमीटर में सेंटी प्रीफिक्स है, Okay, meter is नैनो a unit. प्रीफिक्स। अब अगर आपको कोई कैलकुलेशन दी जाए तो उसमें आप इनको आइडेंटिफाई कर लोगे? जी सर। ठीक है, ये सब क्या है, यूनिट्स हैं एंड ये सब क्या है, प्रीफिक्स है. इनकी जगह पे हम पावर यूज करते हैं उसकी. ठीक है, पर बस सेंटीमीटर लिखा होगा ना, सेंटी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 10 टू द पावर ऑफ -2. मिली लिखा हुआ होगा 10 टू द पावर ऑफ -3. ठीक हो गया. अब आते हैं साइंटिफिक नोटेशन पे. साइंटिफिक नोटेशन में आपने दो रूल्स याद रखने हैं. साइंटिफिक नोटेशन में हमने एक पॉइंट याद रखना होता है कि मूवमेंट ऑफ द डेसिमल. ठीक है, डेसिमल की मूवमेंट को हमने देखना है कि हम कहाँ मूव करें. वी नो दैट, अच्छा एक चीज बल्कि सॉरी वी डू नॉट नो दैट whenever a number is written like this, decimal हमेशा end पे present. If you don't see a decimal in any number, it means it is present at the last of the number. And we have unlimited zeros on either side of the numbers. Am I clear about this point? I need answers. Whenever I ask a question, I need a go ahead from both of you. जी सर। अच्छा, अब जब भी डेसिमल को हम बैकवर्ड मूव करेंगे, we will have a positive power, and whenever decimal is moved to the when it is moved to the left, we will have a positive power of 10. When it is moved to the right, we will have a negative power of 10. And this negative power depends how many decimals we have moved. For example, अब इस नंबर पे फोकस रहना, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं. अब आपने मुझे बताना है कितनी पावर आएगी. If I write it down as 2.0, कितनी पावर आएगी मेरे पास? कितने डेसिमल पॉइंट्स मैंने मूव किए? 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो कितना पावर आ गया? अब देखो मेरे पास ये पूरा नंबर था, मैंने उसको नोट डाउन किया सिर्फ इतने तक. दिस इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर, कि मैं अपना फाइनल आंसर कितने डिजिट्स तक नोट कर रहा हूँ. ठीक है, सो हाउ मेनी डिजिट्स डू आई सी? ओनली वन डिजिट. तो इसके अंदर कितना होगा? वन सिग्निफिकेंट फिगर. आई गेस आप लोगों ने मैथ्स में वो पढ़े थे ना, राउंडेड ऑफ टू 10, राउंडेड ऑफ टू 100, राउंडेड ऑफ टू 1000. डू यू गाइस रिकॉल दैट? जी सर, पढ़ा हुआ है राउंड ऑफ। जैसे जैसे अगर 845 है, हम इसको 850 भी लिख सकते हैं. अगर हम 855 है तो हम उसको जो है 900 लिख सकते हैं, या इसको हम 845 को 800 राउंड ऑफ कर सकते हैं. रिमेम्बर? यस। तो इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं कि हमने अपना फाइनल आंसर कितने डिजिट्स तक लिखना है, और वो टोटली डिपेंड करेगा हमारी कैलकुलेशंस पे, जिसको हम डिटेल में आगे जाके एक एग्जांपल से डिस्कस भी करेंगे. बट फॉर नाउ सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि अपना फाइनल आंसर. फॉर एग्जांपल
अच्छा उस पे आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आते हैं। अच्छा अब डेसिमल हम जब बैकवर्ड मूव करेंगे हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव पावर आएगा, और जितने डेसिमल मूव करेंगे उतनी हमारे पास जो है वो पावर आएगी। सिमिलरली अगर इफ वी हैव अ नंबर लाइक दिस 0.00123, ठीक है। अब इफ आई मूव द डेसिमल टू द राइट एंड आई राइट इट एज 1.23, तो कितनी पावर आएगी मेरे पास? ईमान, पावर क्या बनेगी इसकी? सर क्या पूछा था कि इसकी पावर कितनी बनेगी? हाँ मैंने इसको 0.00123 को लिख दिया है 1.23, तो उसकी पावर कितनी बनेगी? कितने डेसिमल मैंने मूव किए टू द राइट? ये 1 के बाद आपने पॉइंट लगाया तो 2 3 हम्म, उसकी राइट साइड पे चले गए। ठीक है, सो कितनी पावर आएगी? -3। तो जितने भी डेसिमल हम लोग मूव करते हैं उतनी हमने पावर लगानी होती है। वो हमने डिसाइड ये करना होता है कि हमने डेसिमल को राइट मूव किया है या लेफ्ट मूव किया है। अगर राइट मूव किया है तो उतनी नेगेटिव पावर ऑफ 10 लगा देंगे। अगर हमने राइट मूव किया, आई मीन लेफ्ट मूव किया है, मैंने इसके लिए R लिख देता हूँ, तो हमारे पास उतनी पॉजिटिव पावर आएगी। ठीक हो गया? कैन यू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड? जी सर। सर ये वाला जैसे नहीं मुझे समझ आया जो आपने लास्ट में बताया था ना, पावर कैसे देखनी है। पावर देखनी है, पावर खुद ही लिखनी है हम लोगों ने। जब भी हमारे पास कैलकुलेशंस आएगा और हमारे पास ऐसे लंबी लंबे नंबर्स आ रहे होंगे ना, तो हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम दो पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को रखेंगे, प्रीफिक्स, सिग्निफिकेंट फिगर एंड साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आंसर आता है 3, ठीक है। अब आप अपना फाइनल आंसर ऐसे नोट नहीं करोगे, आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे? पावर ऑफ 10 की फॉर्म में। अब डेसिमल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल लास्ट में। इफ वी डोंट सी अ डेसिमल, डेसिमल हमेशा कहाँ पे होगा? नंबर के लास्ट में होगा। अब मैं इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की बेसिस पे क्या करूंगा? मैं डेसिमल को मूव करूंगा 3 4 5 6 7 एंड 8। आई विल राइट इट एज 3.0 into the power of 8। ठीक है। सो साइंटिफिक नोटेशंस, प्रीफिक्सेस एंड उसकी बेसिस के ऊपर हम अपने फाइनल कैलकुलेशंस को किस तरह नोट करना है वो हम इन तीनों से हेल्प आउट लेते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर आता है 0.1250607, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा? आई विल राइट इट एज 12.56 है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो क्या बन जाएगा? 12.6 इंटू द 10⁻⁻², क्योंकि डेसिमल मैंने कहा मूव किया है? टूवर्ड्स राइट। कितने पॉइंट्स मैंने मूव किया? 2 पॉइंट्स, तो -2 आ गया। अब -2 पावर किसकी होती है? प्रीफिक्स। इसके प्रीफिक्स की वैल्यू, इसके प्रीफिक्स का नेम क्या है -2 के? बताओ, -2 की प्रीफिक्स की क्या वैल्यू थी, क्या नाम था उसका -2 का प्रीफिक्स? यहां से देखो, क्या है? -2 किसके इक्वल है? सेंटी के। सेंटी और -3 किसके इक्वल है? मिली के। तो मिली। मैं इसको क्या लिख दूंगा? इस वाले को, टॉप वाले को क्या लिखूंगा? 1.23 मिलीमीटर। एंड इसको कैसे लिखूंगा? 12.6 सेंटीमीटर। और इसको हमारे पास टू द पावर ऑफ 8 का कोई है? 8 का हमारे पास नहीं है। अगर हम इसको एक डेसिमल फर्दर ऑन मूव कर दें, मजीद इस साइड पे मूव कर दें एंड राइट इट एज 0.3 इंटू 10⁻⁹, तो 9 का प्रीफिक्स हमारे पास क्या है? गीगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जाउस था। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने आ रहे हैं? 1। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। इसको मैं जस्ट 1 भी लिख सकता हूँ, 1 मिलीमीटर, cos 1.23 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास कुछ भी राउंडिंग ऑफ नहीं होगी। आई विल राइट इट एज 1 मिलीमीटर। सो ये आप, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? इसमें कितने थे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है? जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब
यहाँ पे हमारे पास कितना था, वन सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी कितना है, वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डू वी हैव? सर कौन से वाले में? लास्ट वाले में 12.6। 3 नहीं है significant सर। figures. ठीक है, और मैं इसको राउंड ऑफ करके एक और नंबर भी लिख सकता हूँ। राउंडिंग ऑफ इसको करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 12.6 को राउंड ऑफ करूँ तो क्या बन जाएगा? 13 लिख सकता 13। हूँ मैं इसकी जगह पे। जी। ठीक है, सो राउंड ऑफ किया तो क्या बन गया, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास? टू सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग समझ में आया कि हम अपने फाइनल आंसर को कितने डिजिट्स तक नोट करते हैं, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू अस कि हमने उसको कैसे करना है। बस हमने अपने फाइनल आंसर को शॉर्ट, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज फॉर्म में नोट डाउन करना। दैट्स हाउ सर प्रीफिक्स, सॉरी, सर आंसर हमेशा शॉर्ट मतलब लिखना है, जितना छोटा हो हाँ सके अपना उतना। हमने फाइनल आंसर हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यूजिंग टेकिंग द हेल्प फ्रॉम प्रीफिक्स, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। सर लेकिन क्या क्वेश्चन में हमें बताएंगे, हमें पता कैसे हाँ, चलेगा कि हमने कितने नहीं सिग्निफिकेंट नहीं, फिगर्स तक लिखना है? हमने खुद से करना है। हमने कैलकुलेशंस हमने की, हमने कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया, फोर्स फाइंड आउट किया, वेट फाइंड आउट किया, हमारे पास एक बिगर डिजिट्स में आंसर आ रहा है, तो हमने विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर एंड साइंटिफिक नोटेशन हमने उस आंसर को शॉर्ट करके लिखता है। हमें जितना वो शॉर्ट कुछ भी होता है नहीं उतना कहेगा। करना है? हाँ, जितना पॉसिबल हो। नॉर्मली हम ध्यान रखते हैं कि नियरेस्ट प्रीफिक्स तक ले जाएं, ठीक है, या राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 100 कर दें, टोटली डिपेंड करता है हमारी कैलकुलेशन। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जिन कैलकुलेशंस को यूज करते हुए हम लोग अपना आंसर करें, फॉर एग्जांपल मैंने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, माय मास इज लेट्स से 980 kilograms and my volume is 1000 meter cubes। अब इसका आंसर क्या आएगा? 0.98। ठीक हो गया, 98 kilograms per meter cube। अब ये ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है, हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी कैलकुलेशंस आती हैं जिसमें हमारे पास फाइनल आंसर फिगर्स आ रहा है, अप टू 6 फिगर्स का आंसर आ रहा है या अप टू 9 फिगर्स का आंसर आ रहा है, तो हम उसको शॉर्ट करके लिखेंगे यूजिंग द टेकिंग हेल्प फ्रॉम प्रीफिक्स एंड एवरीथिंग एल्स। क्लियर? यस। ये पॉइंट्स ऑन द यस सर। गो हर चैप्टर के अंदर ये डिस्कस होते रहेंगे, तब मैं सिर्फ रेफर करूंगा इन पॉइंट्स को आपको कि अच्छा वो पॉइंट्स को रिमाइंड में लेके आओ। अब एक और चीज आती है कि हमने यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करना होता है। दिस इज अ बिट ऑफ अ ट्रिकी पार्ट, यू मस्ट हैव डन इन द मैथमेटिक्स, आई एम श्योर आपने मैथ्स में किया होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होता है? 0.01 मीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है? 0.001 मीटर्स के। किया हुआ है आप लोगों ने ये? जी सर, किया हुआ है। और अगर हमें 1 सेंटीमीटर टू 1 मिलीमीटर जाना है तो हम कैसे जाएंगे, या 1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर जाना है तो कैसे जाएंगे? हैव यू गाइस डन इट? चला दो। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपने जहन में रखना है, ठीक है, वी नो दैट 1 सेंटीमीटर। अब ये अगर अभी ये पॉइंट जहन में बैठ गया तो बस काम हमारा आज का डन हो गया, अगर नहीं बैठा तो हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10 to the power of -2। और 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10 to the power of -3। मैंने -2 से -3 में जाना है, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर डेसिमल कहीं पे नहीं लगा हो तो डेसिमल हमेशा कहाँ पे होता है? एंड पे होता है। ठीक है, हमारे पास अनलिमिटेड जीरोस होते हैं टू ईदर साइड। आर वी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? जी। यस। ठीक है, अब अगर मुझे -2 से -3 में जाना है तो मैं डेसिमल को फॉरवर्ड मूव करूंगा या बैकवर्ड मूव करूंगा? नेगेटिव पावर को इंक्रीज करने के लिए मैं फॉरवर्ड जाऊंगा या बैकवर्ड जाऊंगा? सर फॉरवर्ड। यस, व्हाई इज दैट? टू इंक्रीज द नेगेटिव पावर वी गो टू द राइट।
कॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डेसिमल जब भी हम राइट मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, नेगेटिव पावर आती है। सो अगर 1 × 10⁻⁻² तो अगर मैं एक डेसिमल आगे मूव करता हूं तो क्या आ जाएगा, ये 10 × 10⁻⁻1, क्योंकि मैंने जस्ट एक डेसिमल मूव किया है, और साथ में ×10⁻², ये ऑलरेडी प्रेजेंट था यहाँ पे। क्लियर? और हमें पता है, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती है। तो -1 और -2 ऐड होकर क्या बना देंगे, -3। सो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 10 मिलीमीटर। तो अगर एक दफा ये चीज समझ में आ जाती है ना आपको, बस अब फॉर एग्जांपल अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, सर इधर तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मिलीमीटर लिखा है, उधर पे 10 मिलीमीटर कैसे लिख नहीं, दिया? कन्वर्ट करना था हमने 1 सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर में। लिखा नहीं है कि मेरे उसने की इक्वल है, मैं कह रहा हूँ उसमें कन्वर्ट करना है 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स में। अच्छा। तो अब देखो यहाँ पे 10 की पावर क्या है, -3, और मैंने जाना किस में है, -2 पे। इट मींस मैं डेसिमल को कहाँ मूव करूंगा, बैकवर्ड। सो टू डिक्रीज नेगेटिव पावर वी मूव डेसिमल टू द लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 120 मिलीमीटर, कॉज मैंने एक डेसिमल आगे मूव करना है -2 से -3 में जाने के लिए। सिमिलरली अगर 12 मिलीमीटर है, 2 सेंटीमीटर जाना है, तो मैं एक डेसिमल कहाँ जाऊंगा, बैकवर्ड जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है? बस एक चीज हमेशा जहन में रखना, जो पॉइंट जहन में बिठाने वाला है, नेगेटिव पावर को डिक्रीज करना है तो हमने डेसिमल को आगे मूव करना है, नेगेटिव पावर को इंक्रीज करना है तो हमने डेसिमल को कहाँ मूव करना है। एंड इतना तो आपको आइडिया है ना, -2 और -3 में से बिगर नंबर कौन सा होगा, विच वन इज अ बिगर नंबर। फिर -2 और -3 में हम्म, -2। ठीक है। अब मैं आपको अगर अच्छा, अब ये चीज याद हो गई कि अगर सेंटी से मिली में जाना तो एक पॉइंट आगे मूव कर दूंगा और एक से वो कर दूंगा। सिमिलरली अगर हमारे पास यूं भी होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0 पॉइंट, या अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻²meters। 1 सेंटीमीटर स्केयर किसकी इक्वल होगा, आप पावर का भी स्केयर ले लेते हो, आपको पता है ना पावर का स्केयर का मतलब होता है पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा हुआ है यस। कि नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। बड़ा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 × 10⁻⁴ meters। अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखता हूँ तो वो कितने मीटर क्यूब की इक्वल होगा, हाउ मेनी मीटर क्यूब की इक्वल होगा वो। अब -2 के साथ उसका क्यूब ले रहे हो, -2 का क्यूब 2 × 3 क्या बन जाएगा, -6। ठीक है। सो अगर आप कभी भी किसी यूनिट की पावर ले रहे हो तो बेसिकली आपने उस पावर को उससे मल्टीप्लाई कर देना, जितनी भी आप पावर ले रहे हो उसकी। अब अगला आप मुझे बताओगे, अगर मैं इसी की जगह पे 1 मिलीमीटर लिखूं, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, फातिमा आप बताओ। सर 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू वो मिली मिली की पावर लगा देनी है बस। 10 - 3। हाँ जी, 10 - 3 मीटर्स। अगर मैं यहाँ पे 1 मिलीमीटर स्क्वायर लिख दूं ईमान, तो कितना बन जाएगा, सर उसके बाद हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वो 6 हो तो जाएगा। -6 मीटर्स बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 1 मिलीमीटर क्यूब लिखूं तो कितने के इक्वल होगा फातिमा, सर 3 को फिर अब उस 3 से मल्टीप्लाई। तो 9 बन। 9। फॉर एग्जाम्पल 1000 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, किलो का प्रीफिक्स लेके आना है, तो मैं डेसिमल को फॉरवर्ड मूव करूंगा या बैकवर्ड मूव करूंगा,
किलो की पावर 10⁻³ होती है। किलो इज इक्वल टू 10⁻³ तो मैं डेसिमल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एंड पे? डेसिमल को बैकवर्ड लेके जाऊंगा या फॉरवर्ड लेके जाऊंगा? पॉजिटिव पावर कब आती है बच्चों? सर कौन सी पावर? पॉजिटिव पावर बैकवर्ड पे आती है या फॉरवर्ड पे आती है? बैक। ठीक है, और मैंने 10⁻³ लेके आनी है, तो कितने डेसिमल मूव करूंगा मैं? 3। तो ये क्या बन जाएगा, 1.0 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, और 10⁻³ की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, किलो। तो ये क्या बन जाएगा, 1 किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1000 मीटर्स लिखता हूँ और मैंने इसको किलोमीटर्स में लेके जाना है, तो मैं कैसे करूंगा? 1000 मीटर्स कितने की इक्वल हो जाएगा, 1 × 10⁻³ मीटर्स, और 10⁻³ किसके इक्वल होता है, किलो के। तो 1000 मीटर्स इक्वल्स टू किलोमीटर। ठीक हो गया। अगर 1 सेंटीमीटर है, मैंने उसको मीटर्स में लेके जाना है, तो वो कितने की इक्वल होगा, 1 × 10⁻⁻²मीटर्स। ये कुछ चीजें हैं जो कैलकुलेशंस में आपको यूज होंगी। बस इतना ध्यान में रखना कि हम नॉर्मली किन यूनिट्स को यूज करेंगे, इन यूनिट्स को यूज करेंगे, ये जो सारे हैं ये वाले। अगर इसके अलावा कोई यूनिट दिया हुआ तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट भी सिर्फ तब करेंगे अगर कोई एक यूनिट इनमें से हो और बाकी। फॉर एग्जांपल डेंसिटी की, जैसे मैंने आपको अभी भी एग्जांपल भी दी थी डेंसिटी की, डेंसिटी में मास का यूनिट उसने किलोग्राम्स दिया हुआ है, वॉल्यूम का उसने मीटर क्यूब दिया हुआ है, हम सिंपली उनको आपस में डिवाइड कर देंगे। अगर उसने मास का यूनिट ग्राम्स दिया हुआ है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो हम उसको सिंपली डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर उसने मास किलोग्राम्स में दिया हुआ है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, या द अदर वे अराउंड, तो हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? जी सर। Okay, that is the end of today's lecture. We'll resume from here tomorrow and pass measuring apparatuses. Which measuring apparatuses we're going to use for the measurement? The very first chapter of our syllabus. I'll walk you through the syllabus as well regarding these two, regarding this chapter as well. The only thing that you need to keep in your mind is how to use a certain apparatus so that we can get the reading of any quantity. For example, if you're measuring length, volume, or anything, without any error. Okay. When it comes to measurement, the only thing the following points we need to keep in our mind is that if we're measuring the length, okay, there are 3 parameters जिसमें हम लोग करते हैं. One is जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि length, volume, density and time period. Let's start with the length, how to measure the length. ठीक है. In order to measure the length with the help of a meter rule, length could be measured using a meter rule or meter tape. Meter rule is basically the scale that you have in your geometry. ठीक है. लेबोरेटरी जो स्केल्स होते हैं वो अप टू 100 सेंटीमीटर तक के होते हैं, एंड आपके पास जो स्केल्स होते हैं वो आई गेस अप टू 10 सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है. सो दीज आर द मीटर रूल्स जिनसे हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं. वी नो दैट कि विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल वी कैन ओनली मेजर स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. स्ट्रेटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोगों ने जो है इस चीज को करना है. अच्छा, we can only measure straight objects using the meter rule. Straight objects की जब भी हमने measurement करनी होती है, we need to keep following points into our mind. The very first is के make sure the object is straight. Second point is it should be placed closer to the object. Sorry, it should be placed closer to the apparatus.
फॉर एग्जाम्पल हम लोग मीटर रूल से मेजर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जिसकी हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं इट शुडंट बी प्लेस फर्दर away from the meter rule, but it should be placed as close as to the meter rule. Then we should make sure that the edges are sharply cut. And the last point is always view perpendicularly. If would not view, for example, give me a second, let me open the book and show you what do I mean by looking the object perpendicular. So that according to our syllabus, the very first topic is physical quantities and measurement techniques. We discussed the physical quantities yesterday. And what does that mean? What was the meaning of physical quantity? Anything that could be measured. The second point that we are discussing today is the measurement techniques. For measurement techniques, which point we need to keep in our mind? I have already told you that length, time, density, and volume we're going to discuss in this chapter. Now, the very first thing, Acha, there are two types of exams that you normally give, which one is core and the supplement. The choice is totally yours, which one you're going to go for that. We're going to discuss that at the end of this lesson. What does these core and supplements mean? Let's jump right into the syllabus. Very first point is describe the use of ruler and using cylinder to find out the length and volume. I was already telling you the rules that we need to keep in our mind. क्या rules हमने अभी भी discuss किए थे? What were the rules? That it should be straight, it should be placed as close to the object and उसके ends properly cut होने चाहिए. And see, this is the meter rule. Now you could see here, this is a little bit of crooked. No, we won't say crooked, but it's not straight, totally straight. So we have to make sure that the object that we're measuring the length for is straight, is placed closer to the object. Okay? Ends should be properly cut like this, and view should be perpendicular. Now let me show you what perpendicular view means. Okay? Whenever you look an object like this, that is, object is placed perpendicular to your eyesight. This is how we normally visualize the object. If we are not viewing the object perpendicularly, we'll have an error which is known as parallax error. That would give us the error in the reading. Na? There was this picture in which उसने eye का image भी show किया हुआ था. But anyhow, do you get the idea कि what perpendicular means? View perpendicular means? How to view the object perpendicularly. ठीक है? Now let me take you back to the वो. अब volume measure करने के लिए हमें पता है कि which apparatus do we use to measure the volume? How can we measure the volume? We can measure the volume using ruler, and we can measure the volume using the measuring beaker or measuring cylinder. अब जो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट होता है उसका वॉल्यूम तो हम लोग सिंपली मेजर कर लेते हैं, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, कल हमने डिस्कस किया था, इज इक्वल्स टू लेंथ टाइम ब्रेड्थ टाइम हाइट. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट लाइक दिस which has proper edges through which we can measure everything, we will simply measure the length, breadth, and height of the object, and we'll get the volume of that object. But if we have like this piece of stone, and I want to measure the volume of this stone, I would take help from the measuring cylinder, measuring beaker. I'll get into detail how we can find out the volume of the object using that. And there is another way, if we want to measure the volume of any circular object. तो हम लोग क्या करेंगे? For example, this is a circular object of which we need to measure the volume of. This is a cylinder. जिसका हमें circumference find out करना है. What I'll do is, I'll take a piece of string. I'll wound that piece of string around this cylinder 3 to 4 times. Okay? I will wound the cylinder string tightly to the cylinder so that there is no extra spaces in between that. Not too tightly, not too loose, but only in a way that it fits the sides of the cylinder. And I'll take 4 to 5 turns around the cylinder. Then I will open the cylinder. I will measure the length of the thread. And suppose it came out to be 10 centimeter, the length.
after reopening this wounded string around it, then what will I do? I will divide it with the number of turns that I've given. If I've given 4 turns, I'll divide it with 4. If I've given 5 turns, I'll divide it with 5, and I'll get the circumference of the diameter, basically diameter of this cylinder. ठीक है? For regular shape object, we measure the volume using this. In order to measure the distance, diameter of a circular object, हम इस तरीके से, if the object is straight like the one I have shown you in this diagram, if it's totally straight, तो हम simply उसकी length को measure कर लेंगे. Am I clear up till here? सर आपने ये जो अभी सिलेंडर में जो डबल टाइम वो जो आप स्ट्रिंग घुमा रहे थे वो स्ट्रिंग था जिससे आप हाँ, मेजर कर रहे धागा. थे? हाँ, हम सिंपली एक धागा लेंगे. we'll wound it around the cylinder 2 3 4 5 times. जितने भी ज्यादा टर्न्स होंगे, more accurate result will come. मैंने 5 times उसको राउंड अप किया around the measuring cylinder, and then I'll after जो है turning around 4 to 5 times around the cylinder, now I'll take it off. I will put it in like this. बिल्कुल straight position में put करूंगा like this. In this example, I'll measure the length of the thread जो मैंने उसके around wound किया था. And then I'll divide it with the number of turns that I have given it to it. Clear? ओके जी बस. Mariam and Iman, am I clear? Yes. Okay. Here are the points. You have the book with you. You can, these are the precautions that I have explained it to you, that the wire must be straight and laid closely along the side of the ruler. Look at the wire. The cuts are neatly. And look at the markings of the ruler. They are probably 1 millimeter apart. And look at the end of the wire and read the scale. For example, if I don't put the wire exactly from 0 end to the other end, maybe I've put the wire like this up till here. So मेरा initial point क्या है? 1, final point क्या है? 5. So what would be the length of the wire? 4. 4 centimeter. ठीक है? We need to make sure that what are the scale written on this, whether it's in millimeters or in centimeter, and we will convert it according to the lecture we have discussed in the previous one. कि centimeter में है और they have asked to convert it to millimeter. So we all have done in the mathematics how to convert from centimeter to millimeter. हम लोगों ने कल उसको discuss किया भी था. Then comes a very important question that comes in your exam. If we want to find out the thickness of one sheet of paper, what we'll do, or any material जिसका हमें thickness find out करना है, instead of taking that material once, we'll take multiple sheets of that paper. I'll measure the total length of the sheets. For example, it's starting from 8 and ending at 12. What will be the reading? What will be the height? 4 centimeter. And I will divide this length with the number of sheets that I have taken, 500. So I will get the thickness of one sheet. So अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे हम आगे जाकर सिंपल पेंडुलम का भी करेंगे, ऑलवेज, अब देखो यहाँ पे y have divided 4 with 500. यूनिट हमारे पास क्या आना चाहिए? सेंटीमीटर्स का. नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक्स मेक द मिस्टेक दैट 500 divided by the length. Here I'll get the unit of 1 per centimeter. ठीक है? Here I'll get the unit of centimeter. And since we know that the length has a unit of centimeter, so make sure that you not do this mistake in your actual whenever you are solving the question. Am I clear? So whenever someone asks to papers की जगह पे कोई भी चीज हो सकती है, we can always take help from this vocabulary. Then comes the volume. Whenever we are measuring the volume of an object, the following points we need to keep in our mind is, here are the points. Select a measuring cylinder that is about 3 or 4 times larger than the object, partially. And बस ये एक मेजर पॉइंट हमने माइंड में रखते हैं कि व्हेनेवर वी आर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का तो हम लोगों ने बात कर लिया था कि अगर इफ वी हैव अ रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट विल सिंपली गो लेंथ बाय ब्रेथ बाय वो. अच्छा, एक और पॉइंट होता है व्हेन वी डिस्कस अबाउट द लिक्विड्स. आज ही बेशक आप लोग घर में एक्सपेरिमेंट करना. टेक अ क्लियर ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, ऐसा क्लियर ग्लास लेना. यू विल सी
two layers like this. One is top meniscus and lower meniscus. Whenever we measure the volume, हमारे पास एक convex shape बनता है, as you could see here as well. So उस convex shapes का जो lower meniscus होता है ना, हम उसको लेते हैं whenever we are taking the measurement of the object. You could see here, अगर मैं इसको further on करूँ, ये देखो, आपको ये curve सा नजर आ रहा है? So when we get the reading, we take the lower meniscus for measuring the volume of the object. बाकी when it comes to volume of the object, वो मैंने आपको बता दिया है कि 3 to 4 times bigger हम लोगों को लेना है उसके अंदर. And अच्छा, रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सिंपली रूलर से मेजर कर लेते हैं. इफ वी आर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एनी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, वी टेक हेल्प फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट मेथड. इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेंगे इन द सिलेंडर लाइक दिस. आई हैव अ नोन वॉल्यूम ऑफ liquid in this cylinder. Suppose it's 10 centimeter cube or whatsoever. This would be our initial volume. Now I will put this stone into this and I will see the rise of liquid in the cylinder. Suppose now it's 15 centimeter cube. So what was the rise after putting the stone in the cylinder? It was 5 centimeter cube. So this is the volume of this stone. This is known as displacement method. Before putting the object whose volume is to be measured, that would be considered as the initial volume. And after putting that object whose volume is to be measured, that is considered as the final volume of the object. There are two ways: either subtract 15 from 10 directly, or just look for the change of height in the liquid. The height of the liquid will tell you the volume of that object. This is known as displacement method. As this, you could see in this example like this. Now I have to measure the volume of the wood. So before putting the wood, this would be considered as the initial volume. अब यहाँ पे देखो, इसका initial volume कितना है? मैं इसको zoom in कर देता हूँ. What is the initial volume हमारे पास आ रहा है? This is lower meniscus. हमने हमेशा इसको देखना है. ये कहाँ पे आके टच हो रहा है? इस रीडिंग के ऊपर. तो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कितना बन गया? 46. आफ्टर पुटिंग द ऑब्जेक्ट हमारे पास अब वॉल्यूम कितना आ रहा है? 65, 66, 67. ठीक है, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम. हाउ टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट नाउ? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट? आई विल सब्ट्रैक्ट फाइनल वॉल्यूम फ्रॉम initial volume. अब again, keep this in your mind. Before putting the object whose volume is to be measured, उससे पहले कुछ भी water के अंदर पड़ा हुआ है, we are not bothered by that. That will be considered as the initial volume of the object. Clear? How to find the volume of the object using measuring cylinder? सर इनिशियल वॉल्यूम वो पहले स्टील ब्लॉक उसमें क्यों डाला हुआ था? वो क्योंकि वुड फ्लोट करती है ना, हमें वुड को फिक्स रखने के लिए वहां पे हमने उसको रखा हुआ है वहां पे. तो सर फिर पहले वो इनिशियल वॉल्यूम फिर वो स्टील ब्लॉक की बता रहा था. नहीं, हाँ, इट्स नॉट, मतलब द थिंग इज कि द ओनली मतलब जो ऑब्जेक्ट whose वॉल्यूम इज टू बी मेजर्ड, उससे पहले पानी के अंदर कुछ भी पड़ा हुआ है हमारे लिए वो इनिशियल वॉल्यूम ही होगा. सर प्लेन वाटर हो. हाँ, जस्ट प्लेन वाटर हो, वो भी इनिशियल वॉल्यूम होगा. अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो वाटर के अंदर सिंक कर जाते हैं. अब ऑब्वियसली अब इसके अंदर हम लोग पॉसिबल एरर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं कि व्हाइल पुटिंग द ऑब्जेक्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर में भी वाटर स्प्लैश आउट हो गया हो, और जो ऑब्जेक्ट जिसका हम वॉल्यूम मेजर करें, पॉसिबिलिटी है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर. ठीक है, तो ये एरर्स आ सकते हैं उसके अंदर. सो बिफोर पुटिंग द ऑब्जेक्ट हुज वॉल्यूम इज टू बी मेजर्ड, उससे पहले जितना भी उससे पहले वाला वॉल्यूम विल बी कंसिडर्ड एज द initial volume. After putting the object in the measuring cylinder, that will be considered as the final volume. Clear? यस सर. Do we have any questions from Iman and Mariam? Mariam, I'm asking you something. Do you have any question? Yeah, but I don't.
ये माइक्रोमीटर्स कल हमने प्रीफिक्सेस किए थे, उन्होंने यहाँ पे वैल्यू दिए हैं। और ये कल हमने ये भी किया था, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0 पॉइंट। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब मूवमेंट डेसिमल पॉइंट्स मूव करो, किस तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। मरियम, ये हमने किया हुआ मैथ्स के अंदर। इफ आई मूव द डेसिमल टू द राइट, 1 2 3 4 5 and 6, क्या पावर आ जाएगी, 1 × 10⁻⁻⁶ और +6। फातिमा, माइनस whenever a decimal is moved to the right we get a negative power, ठीक है। एंड इसमें कितना पॉइंट्स मूव कर रहे हैं हम लोग, 3 मूव कर रहे हैं, 1 × 10⁻⁻³ अब देखो डेसी कितना था, 1 × 10⁻⁻1। अगर डेसीमीटर क्यूब है सो 1 × 10⁻³ यू कुड सी है, वो जो हमने कल कन्वेंस किए थे। इट्स ऑल्सो गिवन इन आवर बुक। वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ शीट्स आ गया, हाउ टू मेक श्योर that the readings are correct, and the last topic for today is density. We know that density is equals to mass over volume. So if a question comes, how would we measure the density of the object? First, we will measure the mass with the help of physical balance or electronic balance. What is the base unit of mass, Iman? What unit of mass should we normally use when it comes to calculation? Hmm? सर हमने 7 में तो न्यूटन से किया था। सॉरी, वो तो वेट होता है, वेट न्यूटन्स में होता है, मास किस में होता है, किलोग्राम। यस। और वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास क्या होगा, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ये ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटीज इन विच इट इज गिवन। इफ यू गैस रिमेंबर, मैंने कल आप लोगों को ये भी बताया था कि मास इज इन वॉल्यूम किलोग्राम्स, वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, यूनिट्स वुड बी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर एक डेसीमीटर में 1 किलोग्राम में है सो किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, एक और थिंग, द ओनली थिंग, अनदर थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज कि यू डू नॉट नीड टू, मतलब if you do not want to convert the units, just make sure you have mentioned the units in your final answer that I have used these units. Then you do not need to convert it. Okay? If you don't want to convert the units, just make sure that you have written the units now. We know that which have densities किसकी सबसे ज्यादा होती है, solid, liquid और gases की। Which one have which are more dense? Mariam, solid, liquid or gas? Sorry? Your question was out of solid and gas, which one has the most density? Yes. Which out of solid, liquid and gas, which have more density? Solid, Hmm? solid. Yes. Why do solids have greater densities as compared to solid and liquid? Sorry, liquid and gas. Iman? सर क्योंकि उनकी जो वो होती है स्पेस ज़्यादा होती है। हाँ जी। Densities of solids are greater than solid and liquid because in solids, atoms are tightly packed. So density has an inverse relationship with volume. So due to this, solids are more dense. And you guys know the answer to this question, na? Object with greater densities sink or float? Objects with greater densities would float or sink. They sink. ठीक है, सो ये पॉइंट भी हमने यहाँ लिखा हुआ है कि materials that have less density will float like wood, and density depends on the nature of wood as well. Density is normally calculated by mass over volume. They have this example, and
ये उन्होंने थ्योरी लिखी हुई है फॉर अ सॉलिड, सॉरी इट टुक अस टू टॉपिक, मैंने गलती से उस पर कर लिया। ये थ्योरी उन्होंने यहाँ पे लिखी है, गेट द थ्योरी। क्या अगर हमें किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है, सॉरी डेंसिटी मेजर करनी है, सबसे पहले हम लोग विल पुट द मेजरिंग सिलेंडर ऑन टू एन empty measuring cylinder onto a physical balance, we'll note the mass of it, and then we'll put the liquid, we'll get the mass of liquid from here, and then we'll measure the volume using the measuring cylinder, and we'll divide mass with volume and we'll get the density of the liquid। अब ये देख सकते हैं कि लिक्विड्स, अब इसमें सबसे ज्यादा लेस डेंसिटी किसकी होगी, इसकी, देन इसकी एंड मोस्ट डेंस क्या है हमारे पास, विच इज एट द बॉटम। सो डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज की वजह से लिक्विड्स कुड फ्लोट ऑन ईच अदर। And the last topic that we have is how to measure the time of an object. Time हम लोग कैसे measure करते हैं? Either we can use a stopwatch, it could be a digital stopwatch or analog stopwatch. The example that we discuss in here is how to measure the time period of a simple pendulum. ये analog stopwatch है हमारे पास, इसके डाटा उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। You do not need to memorize that. And this is digital stopwatch, digital clock, sorry, not the stopwatch. अब ये एग्जाम्पल है जिसको हम डिस्कस करते हैं। दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, दिस इज द बॉब, ये हमारे पास बॉब होता है, एंड लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम टॉप टिल द center of the bob, this is the length. Time period of a simple pendulum has a formula 2 pi under root L over G, here L indicate the length, sorry, L is the length and G is the gravitational acceleration, and it has a fixed value of 9.8 meters per second square. So here we could see is that time period of a simple pendulum is directly proportional to the square root of the length. So अगर हम length को increase करते हैं, time period would increase, length को decrease करते हैं, time period would decrease, obviously with respect to the under root of it. आप simple pendulum का time measure किस तरीके से करते हैं? I will displace the simple pendulum, maybe they have the diagram here. I'll displace the simple pendulum to one of its extreme position. This would be known as the amplitude of the pendulum. After this, I'll release it, and when it will come back to this position, it will be considered as one oscillation. So instead of taking one oscillation, we'll take 20 oscillations. We'll measure the time for 20 oscillations. And for example, it came out to be 25 seconds. I'll divide it with the number of oscillations that I've taken. So time period of sim is measured as time taken for oscillations divided by number of oscillations. That's how we will measure the time period of a simple pendulum. This is the amplitude, as I have mentioned. ये हम with the help of scale measure कर सकते हैं. If a question comes a time period, would it be effective that if we increase the amplitude? So amplitude increase करने से time period पे कोई effect पड़ेगा? मरियम? Yes. नहीं. तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लेंथ ओवर ग्रेविटी होता है. सो ओनली इफ लेंथ और जी इज चेंज्ड
only then time period will be changed, otherwise time period will have no effect. अगर उसका इस mass इसका increase कर देते हैं हम लोग, we increase the mass of the bob, or if I increase the amplitude of the bob, it would not affect the time period of the simple pendulum. The only thing that we need to यहाँ पे definition भी दी हुई है period की. Time for one oscillation of pendulum when it swings from left to right and back again is the period. A single pendulum is too short a time to measure accurately. So instead of 10 one oscillation हम कितनी लेते हैं 20 to 50. The greater the number of oscillations, more accurate results will have. ठीक है. So time per oscillations कैसे find out करते हैं? Time divided by number of oscillations. जितना ज़्यादा time oscillations होंगी उतना ज़्यादा हमारे पास accurate result आएगा, and so forth and so on. Are we clear about everything? सर ये जो आपने एंड में पेंडुलम का टाइम मेजरमेंट वाला जो बताया था, ये प्लीज फिर से बता दें. कि हम लोग जब उसकी oscillation set करेंगे यहाँ से, when I'll release the simple pendulum from here, and when it will come back to this position, तो one oscillation होगा. जैसे ही मैं इसको यहाँ से release करूंगा, मैंने stopwatch on कर देना है. I will measure the time using the stopwatch and will count the number of oscillations it took. So I'll divide the time with the number of oscillations. Okay, that's how we measure the oscillation time period for the simple oscillations. Now let's get back to the syllabus. How to measure a variety of time intervals using clock and digital timers. We just have discussed that. हम लोग लेंस को चेंज करेंगे, विल मेजर द वैल्यू. ये हमारे पास एग्जांपल भी है एक. यहाँ पे उसने हमें 20 ऑसिलेशंस का टाइम दिया हुआ है. टू फाइंड द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन हम क्या करेंगे? 18 डिवाइडेड बाय 20, 25.1 divided by 20, 28.3 divided by 20, 39.4 divided by 20. ऐसे हम वन ऑसिलेशंस का टाइम निकाल लेंगे. और साथ साथ उसने यहाँ पे हमें लेंथ भी इंक्रीज की हुई है. सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस टेबल यू विल गेट टू नो कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपके पास टाइम पीरियड का आंसर भी क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा. So ये उसने पहला पॉइंट यही डिस्कस किया है. डिटरमाइन एन एवरेज वैल्यू फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बाय मेजरिंग मल्टीपल. ये है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एरर, हम रीडिंग को एक दफा मेजर नहीं करेंगे, बट विल टेक मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द सेम क्वांटिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिजल्ट. अब आपको पता है कि अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स या टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वंस इट केम आउट टू बी 20.1, 20.2, 20.0, 20.3. सो हम क्या करेंगे? हमने एक ही सिंपल पेंडुलम की 20 ऑसिलेशंस का टाइम नोट किया एंड आई टुक द एवरेज ऑफ दिस रीडिंग. इससे क्या होगा? हमारे एरर में क्या आएगा? सॉरी, रीडिंग में क्या आएगा? एरर मिनिमम आएगा. ठीक है. तो ये वो पॉइंट डिस्कस करा है कि कभी भी कोई मेजरमेंट करनी है, वेदर इट्स ऑफ लेंथ और ऑफ टाइम और डेंसिटी और एनीथिंग, take multiple readings of the same quantity and then take average of that. This will reduce the error. Then we have understand that the scalar quantity has magnitude. This will be the topic into our next lesson. And yes, these rest of the things we'll discuss in the next lesson. Am I clear of everything that we have discussed today? वो अभी लास्ट में बताया वो फिर से रिपीट करते हैं. Which thing? Average वाला? सर नहीं, जो इससे पहले आप बता रहे थे. बस वही टाइम पीरियड डिस्कस कर रहे थे कि टाइम पीरियड मेजर करने के लिए वो हमारे पास जैसे जैसे हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, विल सी कि यहाँ पे ग्रेजुअली टाइम भी इंक्रीज हो रहा है हमारे पास. सो दैट शोज के टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. See, so that is the end of chapter number 1. With respect to, we are left with only these topics, scalar and vector quantity, that will explain the next chapter. Okay. सर फर्स्ट चैप्टर हो गया. Yes.